Guys, in our last lecture, we were discussing about the models, machine learning models. So basically, they are divided into two parts. One is a regression model, and another is a classification model. So let's suppose today I'm going to discuss about the regression model only, but I will give a hint of what classification models are. तो पहले this is our data set which has a maker, car name, tire size, weight, cc, which is engine capacity, year, number of kilometers, and miles per gallon for different sets of cars. So what are regression models are those जहाँ पे जो y वेरिएबल है जो हमें प्रेडिक्ट करना होगा वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है. कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या है? इट कैन बी 20.2, इट कैन बी 18.5, इट कैन बी any numerical numbers which can be counted. But in a classification model, y variable वो होगा, it will be like a discrete class labels. Let's suppose based on this data set I had to predict whether this car will be owned by a man or a woman, or whether this car would have been built in North America or Europe or Asia. So this is discrete class labels. And if y variable is a continuous variable, where let's suppose I right now I have to predict whether this is miles per gallon. Let's suppose I had to predict कि कितने how many dents would be there, or how many kilometers it might have driven, something like that. So if it's a continuous variable, which is the y variable, then it's a regression model. Or if I have to predict the this discrete class labels, then it is a classification model. So the most important, most used regression model is the linear regression. ये हमने बहुत कॉमनली सुन लिया होगा, लीनियर रिग्रेशन. सो लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है? वी ट्राई टू प्रिडिक्ट वाई वेरिएबल बेस्ड ऑन एक्स वेरिएबल, बट इट विल क्रिएट ए स्ट्रेट लाइन. सो वी नो दैट इन स्ट्रेट लाइन व्हाट इज द फॉर्मूला? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट and m is a slope, x is the variable, and y is a variable. So this is the equation which is used by linear regression to predict the y variables. So let's suppose हमने एक जैसे हमारे पास यहाँ पे MPG को प्रेडिक्ट किया, और हमारे कोई एक वेक्स वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मैंने वेट ले लिया यहाँ पे. तो आई मीन अगर मल्टीपल प्लेन में देखें, मल्टीपल वेरिएबल्स एक्स वेरिएबल्स देखें, तो आप वो 4 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल प्लेन समझ लीजिए. बट अभी मैं क्योंकि एक ही वेट ले रहा हूँ, एक वेरिएबल एक्स वेरिएबल ले रहा हूँ और एक वाई वेरिएबल ले रहा हूँ, तो आई एम डूइंग इट इन 2 डायमेंशनल. सो लेट्स सपोज फॉर दिस वेट, दिस इज अवर वाई वेरिएबल, दिस इज y1. So let's suppose for this weight, this is our y variable which is mpg, this is y2. Similarly ये y3, y4 एंड एवरीथिंग है. तो लेट्स सपोज जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जैसे ट्रेन और टेस्ट वेरिएबल्स में हम डिवाइड करते हैं, फिर वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द मॉडल विच हैव बिल्ट ऑन एक्स वेरिएबल. So let's suppose since it's a linear regression, so let's suppose we have built a model and this is the y predicted. So let's suppose this is for this x variable, ये एक्चुअल है, बट हमने प्रेडिक्ट किया है कि ये होगा y predicted, y1 predicted. Similarly this would be the y2 predicted, and this would be the y3 predicted, and this will be the y4 predicted. नाउ अब हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस बहुत है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, वैसे ही सिमिलरली यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस है. ये एक्चुअल वैल्यूज़ है और ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हम सारा प्रेडिक्शन एक स्ट्रेट लाइन पे करते हैं. तो जो डिस्टेंस, जैसे ये पॉजिटिव डिस्टेंस है और ये नेगेटिव डिस्टेंस है, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा मॉडल कितना इफेक्टिव है? फॉर रिग्रेशन मॉडल देयर आर 2 मेन थिंग्स विच वी यूज़, विच इज़ वन इज़ आर स्क्वायर एंड वन इज़ RMSE, विच इज़ रूट मीन स्क्वायर एरर. तो जैसे ये जो डिस्टेंस है जो हमारा प्रेडिक्टेड है, जो हम प्रेडिक्ट स्ट्रेट लाइन पे किए, और जो एक्चुअल है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं एरर. ओके, तो सिंस दिस इज, अब हम जानना चाहते हैं कि कितना एरर है हमारे मॉडल में, टोटल एरर कितना है. तो सिंस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे को नलीफाई कर सकते हैं, तो इसकी वजह से हम इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं. ओके, देन इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर्ड एरर. ओके, अब हम स्क्वायर्ड एरर तो ले लेते हैं, जैसे ये हम स्क्वायर्ड एरर ले लेते हैं. अब हम इसका मीन लेके ना इसका रूट कर देते हैं. जब इसका हम स्क्वायर्ड एरर का मीन लेके मीन स्क्वायर एरर का रूट ले लेंगे तो RMSE आ जाता है. ये RMSE हमें बताता है हमने जितने भी मॉडल हमने बिल्ड करेंगे, जिसमें सबसे लोवेस्ट RMSE होगा वो हमारा मोस्ट इफेक्टिव मॉडल होगा फॉर प्रेडिक्टिंग दैट पर्टिकुलर
डेटा सेट और प्रेडिक्टिंग दैट वेरिएबल करेक्टली। तो हमारा एंड केस क्या है, हम जानना क्या चाहते हैं, जैसे ये हमारा डेटा सेट है, ये वाई है, तो हमें एक्चुअली ऐसा मॉडल बिल्ड करना होता है विच इज़ एम कैसे होगा, M1 इंटू मेकर की जो भी वैल्यू होगी प्लस M2 इंटू कार नेम प्लस M3 ये हमारा स्लोप है जो हमें फाइंड आउट करना होता है वाइल बिल्डिंग द मॉडल। जिस मॉडल का हमें सबसे लोवेस्ट RMSE मिलेगा, सबसे लोवेस्ट आर स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है कि कितनी वेरिएबिलिटी एक डेटा सेट की हमारा जो मॉडल है वो बिल्ड कर सकता है, हमारा मॉडल हमें इफेक्टिवली बता सकता है। जिसके केस में सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी हमें बता सके कोई मॉडल, तो वो हम मॉडल इफेक्टिव होगा, और RMSE भी जिसका सबसे कम हुआ वो मॉडल हमारा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो बेसिकली इन द एंड हमें क्या निकालना होता है, ये वैल्यूज़ निकालनी होती है जो स्लोप की वैल्यूज़ है और ये कांस्टेंट की वैल्यूज़ है। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम सीधा कोई भी कार नेम डाल देंगे। जैसे हमारे पास इतनी सारी ये वैल्यूज़ थी, ठीक है, हम कोई भी लेट्स सपोज यहाँ पे 2020 डाल देंगे, टायर साइज़ की वैल्यू, ईयर CC हमारा 8000 है तो 8000 हम डाल देंगे यहाँ पे CC में, तो M6 हमें निकल जाएगा। हम 6 हमें प्रेडिक्ट करना होगा, हमें मॉडल से प्रेडिक्ट करके निकाल देंगे। बेसिकली मॉडल से हमें M6 और इन सब की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, कांस्टेंट की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें सिंपली जो भी हमें नया डेटा सेट आएगा, जैसे कोई और दूसरा डेटा सेट आएगा जो जानना चाहता है हमारा MPG कितना होगा बेस्ड ऑन दीज एक्स वेरिएबल्स, वो एक्स वेरिएबल्स हम सिंपली डाल देंगे और फिर हमें MPG की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। वन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच आई नीड टू टेल यू गाइस is like I told you in earlier conversations कि हम let's suppose we have 1000 one important thing which I told you one important thing which I had told you earlier कि लेट्स सपोज हमारे पास फिर से 1000 रोज़ ऑफ डेटा है। हम लेट्स सपोज हम इसको 70:30 रेशो में डिवाइड करते हैं, तो ट्रेन डेटा इज़ अराउंड 700 रोज़ एंड टेस्ट डेटा इज़ अराउंड 300 रोज़। तो वी टेक दिस ट्रेन डेटा जिसमें x एंड y दोनों लेते हैं, y इज़ अवर वेरिएबल विच नीड्स टू बी प्रेडिक्टेड। तो हम क्या करते हैं, x और y मॉडल को देते हैं, इट ट्रेन्स द डेटा बेस्ड ऑन दैट, सो इट विल क्रिएट अ मॉडल। एंड हम इस मॉडल को, इस जो x ट्रेन है और ये y ट्रेन है, हम इस मॉडल को फिर से जब मॉडल ट्रेन हो जाए, हम XY दे के हम इस मॉडल को इस x ट्रेन पे चलाते हैं और फिर हम उस पर y ट्रेन प्रेडिक्ट निकालते हैं। ये y ट्रेन प्रेडिक्ट और ये y ट्रेन को भी हम कंपेयर करते हैं, और लेट्स सपोज हमारे पास इसमें RMSE लेट्स सपोज 221 आया है, ओके, RMSE 221 आया है एंड आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.85। एंड नाउ हम ये मॉडल को एक्स टेस्ट पे चलाएंगे और उसमें से हमको इसमें वाई टेस्ट भी है, लेकिन हम सिर्फ मॉडल को एक्स टेस्ट पे चलाएंगे और उसमें वाई टेस्ट प्रेडिक्टेड निकालेंगे, और फिर हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे जैसे कि हमने इसको और इसको कंपेयर किया था। तो लेट्स सपोज RMSE, you understood right, the error, the difference, लेट्स सपोज ये 223 आया और आर स्क्वायर की वैल्यू आई 0.83। तो ये कंपेरेबल है बिकॉज ये मॉडल हमारा कंसिस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन डेटा एज वेल एज टेस्ट डेटा। दैट मीन्स इट्स अ गुड मॉडल विच वी हैव क्रिएटेड। और अब हमारे पास कोई और एक्स वेरिएबल आ जाए जिसकी हमें वाई वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होगी तो हमें वो फेयरली गुड रिजल्ट देगा। बट लेट्स सपोज अगर हमारा इस केस में आर स्क्वायर अगर लेट्स सपोज 0.99 आ गया और RMSE हमारा एरर इज़ वेरी लेस, लेट्स सपोज 32। व्हाट डज दिस मीन कि हमने मॉडल इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया है कि वो पूरी तरह से एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की वैल्यू एकदम पकड़ लिया है। लेकिन जब हम उस मॉडल को वाई टेस्ट प्रेडिक्ट निकालने की कोशिश करते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं वाई टेस्ट से, तो लेट्स सपोज उसका आर स्क्वायर 0.53 आया है और RMSE 772 आया। मतलब हमने अब ऐसा मॉडल बनाया है जिसका RMSE 32 है लेकिन टेस्ट में हमारा RMSE 772 है, आर स्क्वायर की वैल्यू 0.53 है
और उस केस में 0.99 है। इसका मतलब हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा ही ट्रेन हो चुका है हमारे ट्रेन वेरिएबल्स के हिसाब से। तो इसका मतलब वो एक ओवर फिटिंग वाला केस हो गया है यहाँ पे। तो ओवर फिटिंग इज़ व्हाट सिनेरियो? ओवर फिटिंग इज़ दैट सिनेरियो in which so overfitting is that scenario in which the model is 100% inclined or very much inclined to our trained data set, कि अगर उसको और कोई किसी और डेटा सेट पे लेट्स सपोज आप कोई और डेटा सेट आया उसमें वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देगा। तो हमें ये सिचुएशन अवॉइड करनी है कि हमारा मॉडल ट्रेन डेटा सेट में तो अच्छी प्रेडिक्शंस दे रहा है, आरएमएससी भी कम है, आर स्क्वायर की वैल्यू भी अच्छी है, लेकिन अगर हम उसको टेस्ट डेटा सेट पे चला रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दे रहा है। हमारे इस केस में द फर्स्ट केस में जहाँ आरएमएससी 221 था और आर स्क्वायर की वैल्यू 0.85 थी और वही टेस्ट में 0.83 थी और आरएमएससी 223 थी, ये कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे रहे थे। तो इसका मतलब ये वो मॉडल हमारे से बढ़िया है इंस्टेड ऑफ व्हाट वी आर डन अर्लियर। तो दैट केस इन विच द मॉडल गिव्स fairly good results with respect to train data but very varying results with respect to test data, that is called overfitting। एंड इसको एक और टर्म से डिनोट किया जा सकता है, इट कॉल्स लो बायस हाई वेरिएंस। तो व्हाट इज लो बायस एंड हाई वेरिएंस? तो ओवरफिटिंग कब होता है? जब हमारा मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो। मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा कैसे हो जाएगी? हमने उसको इतना ट्रेन किया विद रिस्पेक्ट टू हमारा ट्रेन डेटा सेट कि वो अब उसी के इंक्लाइंड हो गया है, वही पैटर्न पूरी तरह से समझ रहा है। और जब उसके पास टेस्ट वेरिएबल आया या फिर कोई और वेरिएबल हम और कोई डेटा सेट ले आए, वो उसमें कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दे पाया, तो इसको ओवरफिटिंग कहते हैं। और अगर हमारा मॉडल कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना है, एकदम सिंपल मॉडल बना है, इनफैक्ट कुछ खास उसमें दिया भी नहीं है, तो वो ऐसा केस हो सकता है वो ट्रेन डेटा सेट में भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे। 0.35 लेट्स सपोज आर स्क्वायर आया है और आरएमएससी भी हमारा 2200 समथिंग आया है, तो ये अंडर फिट डेटा है, मतलब ये हमारा कंसिस्टेंट रिजल्ट उसमें भी नहीं देगा जब हमारा टेस्ट वेरिएबल इसमें देंगे। तो दीज आर द कंडीशंस। और फिटिंग के ऊपर मैं एक और लेक्चर देने वाला हूँ जहाँ हम बायस और वेरिएंस की भी बात करेंगे। उससे पहले हम क्लासिफिकेशन मॉडल का एक सेशन ले लेंगे।